جس کی آنکھوں میں انگریزوں نے ایک خاص قسم کا پوائزن ڈالا، ایک زہر ڈال دیا تھا جس سے وہ اندھا ہونے لگا، کیونکہ انگریزوں کو معلوم تھا اسلامک لا کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق کوئی اندھا راجا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اندھا حکومت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے انگریزوں نے ان کی آنکھ میں زہر کھول دیا، اور یہی نہیں بلکہ صبح کے وقت ناشتہ کرنے کے لیے ان پہ زور ڈالا گیا۔ بہادر شاہ ظفر تیار نہیں ناشتہ کرنے کے لیے، زبردستی ناشتہ لایا گیا، اور جس شخص میں ناشتہ لایا گیا تھا جب اس شخص سے جس پہ سفید رومال ڈالا ہوا تھا ہٹایا گیا تو بہادر شاہ ظفر دیکھتے ہیں ان کی بے بسی کا عالم کھوج لیجیے کہ ان کے دو بیٹے اور ایک پوتے کا کٹا ہوا سر اس دشت میں رکھا ہوا ہے، اس سینی میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ارے بہادر شاہ ظفر دیکھ کر کے کہتے ہیں مجاہدوں کے سر یوں ہی ہوا کرتے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی جنبش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اتنے اطمینان سے جیل کی کال کوٹریوں میں بھی یہ مرد خدا اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ 1831 سے 1857 یا آپ کہیے کہ 1803 سے 1857 تک اگر اس میدان میں کوئی ہے تو صرف علماء ہے، اگر اس میدان میں کوئی ہے تو علماء کے مریدین ہیں، اگر اس میدان میں کوئی ہے تو علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اگر اس میدان میں کوئی ہے تو علماء کے ماننے والے مسلمان ہیں، اگر اس میدان میں کوئی ہے تو علماء کو چاہنے والے کچھ ہندو بھائی ہیں۔ عمومی طور سے علماء ہی کا طبقہ ہے، کئی ہزار علماء اس درمیان شہید کیے جا رہے ہیں، اس جنگ میں کسی دوسرے کا ذرا برابر حصہ نہیں ہے۔ 1857 کے اندر جبکہ انگریز اب دلی پہ بھی قبضہ جما چکا ہے اور کنٹرول حاصل کر چکا ہے، اور وہ لال قلعہ جسے ہمارے پرکھوں نے اور جسے ہمارے بڑوں نے جسے ہمارے پروجوں نے بنا کر کے خون پسینے سے سینک کر کے دیا تھا، اور جسے آج کی حکومت کہتی ہے کہ تم نے دیا کیا ہے، اور وہ بھی اسے بیچ رہی ہے کیونکہ یہ اس کی وراثت نہیں ہے، یہ ہماری وراثت ہے، اور جو اپنی وراثت کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ یہی حشر کیا جاتا ہے، اور یہی حشر کیا جانا بھی چاہیے۔ جب ہم اپنی وراثت کی حفاظت نہیں کریں گے، ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ تک نہیں معلوم ہوگی، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ حسین احمد مدنی کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ شیخ الہند کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ٹیپو کی شکل کیسی تھی، ہمیں یہ نہیں خبر ہوگی کہ نراج سراج الدولہ نے کیا کیا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر نے آخر وقت میں کیا جملہ کہا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ٹیپو سلطان شہید علی رحمان نے جیدر کی 6 سالہ زندگی پہ موت کے ایک دن کی زندگی کو بہتر قرار دیا تھا۔ تو یہی حشر ہونے والا ہے اور یہی حشر ہوتا ہے۔ پھر میٹنگ کی گئی دلی کے اندر، 34 علماء کو جمع کیا گیا، میٹنگ چل رہی ہے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، اب انگریز تو مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ جب انگریز یہاں ہندوستان میں آیا ہے 1000 مدرسے صرف دلی کے اندر ہے، سارے مدرسوں میں بلڈوزر چلا دیا گیا ہے، سارے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا ہے، مدرسہ شاہ ولی اللہ پہ بھی بلڈوزر چل چکا ہے۔ یہ صورت حال ہے، ایک ایک شناخت کو، ایک ایک پہچان کو، ایک ایک چیز کو ہماری ڈھونڈ کے مٹایا جا رہا ہے۔ 34 علماء کی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہہ کر کے لوگ تھک جا رہے ہیں، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ حضرت مولانا حجت الاسلام الامام القاسم النانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند علیہ رحمہ اللہ اس مرد اہم کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ ہم جہاد کیوں نہ کریں؟ یہ کہنا تھا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا اور لوگ جہاد سے مرتبط ہو گئے اور دستخط کی گئی، 34 علماء نے دستخط کی کہ جہاد پھر سے شروع کیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2 محاذ بنائے گئے، ایک امبالہ کے مقام پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانوی کر رہے تھے، اور دوسرا محاذ شاملی کے علاقے میں جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کر رہے تھے۔ یہ جنگ شروع ہوئی، انگریزوں سے پھر سے مورچہ لیا گیا اور پھر سے جنگ کا آغاز کیا گیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر شکست ہوئی کیونکہ وسائل کی قلت، افراد کی قلت، غداروں کی زیادتی اور نامعلوم کتنے اور پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جنگ بھی شکست میں تبدیل ہو گئی، نامعلوم کتنے لوگ شہید ہوئے، حافظ ضامن شہید علیہ رحمہ بھی شہید کر دیے گئے، مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کو بھی گولی لگی، آپ کو بھی زخم آیا، لوگ وہاں سے رائے فرار اختیار کر کے ادھر ادھر لوگ منتشر ہو گئے اور وہاں سے چلتا ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انگریزوں نے
जब देखा कि अब ये जंग भी नाकामी में तब्दील हो गई है और अब यहाँ कोई सामने हमारे मौजूद नहीं है, लेकिन वक्तन फवक्तन ये लोग खड़े हो जाया करते हैं, वक्तन फवक्तन ये लोग जंग का बिगुल बजा दिया करते हैं, वक्तन फवक्तन ये लोग दूर फूंक दिया करते हैं और फिर इनकी आवाम खड़ी हो जाती है। तो फिर अब क्या किया जाना चाहिए? सर विलियम थॉमसन ने लिखा है कि वायसराय बर्तानिया की तरफ से ये पैगाम दिया गया और ये तार आया कि जरा ये बताइए कि वहाँ पे जंग कौन कर रहा है और किसके बलबूते लड़ी जा रही है और कौन लोग लड़ रहे हैं और कौन लोग क्या कर रहे हैं और किसका कारनामा क्या है। तो यहाँ से उसको पैगाम दिया गया मिस्टर थॉमसन ने लिखा के, क्योंकि यहाँ पे उलमा की तादाद ज्यादा है और वही सबसे पेश रह रहे हैं और वही उकसाते हैं और वही लोगों को लड़ाते हैं। जब तक उलमा को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से जज्बे जिहाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक उलमा को दफन नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से जिहाद का जो बीज बार बार उग जाता है और जिहाद लोग करने लगते हैं उसको सवा के खत्म नहीं किया जा सकता है। और उलमा को खत्म करने के लिए जरूरी है, जिहाद को खत्म करने के लिए जरूरी है कि उलमा को खत्म किया जाए। और इन उलमा को खत्म करने के लिए एक चीज और जरूरी है कि कुरान मुक़द्दस को खत्म कर दिया जाए। जब तक इनके दरमियान कुरान रहेगा और जब तक इनके दरमियान ये उलमा मौजूद रहेंगे, ये कार्रवाइयाँ इसी तरह चलती रहेंगी और इसी तरह हम लोग अंजाम भुगतते रहेंगे और इसी तरह भुगत जंग का बजाते रहेंगे और बार बार हमारे खिलाफ बगावत चलती रहेगी। 1857 की इस जंग के बाद 1861 से लेकर के 64 तक 3 लाख से ज्यादा कुरान पाक के नुस्खे जलाए गए। जलाने वाले जला करके थक गए, लेकिन उनको कहीं पे ये समझ में आया कि ये तो सीने में महफूज है, जलाने का कोई खास नतीजा नहीं। कुरान के नुस्खे जलाने के बाद फिर उन्होंने उलमा की तरफ रुख किया और उलमा को फिर जलाया गया, उलमा को जिंदा दफनाया गया, उलमा को सूअर की खानों में फेंक दिया गया, उलमा के ऊपर सूअर की चर्बियां मली गई। जो नफीस किस्म के लोग होते थे, जो नफीस तबीयत के मालिक उलमा होते थे, जो गंदगियों से दूर रहते थे, बात उलमा बहुत नफीस तबीयत के थे, उनको पकड़ के लाया जाता था और जबरदस्ती उनके ऊपर सूअर की चर्बियां मली जाती थी। इस सब थॉमसन कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से दर्रे खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के ऊपर किसी न किसी आलिम की गर्दन न लड़की हुई हो, किसी न किसी आलिम की लाश न लड़की हो। थॉमसन लिखता है पकड़ के उलमा को से उलमा को लाया जाता था और उन्हें बोरियों में भर करके दरिया रावी में फेंक दिया जाता था और उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी। उनको बांध करके लटका करके हाथी को नीचे से दौड़ा दिया जाता था। नतीजा ये निकलता था आज भूसे की तरह वो पीस के रख दिए जाते थे। 40 उलमा को ला करके अंगारों पे लिटाया जाता था। थॉमसन खुद लिखता है मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम है, यानी अल्लाह की कसम खा करके वो कहता है कि मुझे जामा मस्जिद के पीछे मुझे बदबू महसूस हुई, मुझे लगा कि मुझसे जलाए जा रहे हैं। मैंने जा करके देखा कि अंगारे हैं पूरे, आग पीछी हुई है, उससे 40 उलमा को ला के लिटाया जाता है। मेरी आंखों के सामने 40 उलमा को ला करके ये कहा गया कि मौलवियों तुम सिर्फ इतना कह दो कि हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद में शरीक नहीं थे, हमने तुम्हारे खिलाफ जिहाद नहीं किया है, हमने तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं की है, हमने तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाया नहीं है, हमने तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काया नहीं है, हम अभी तुम्हें छोड़ देंगे। थॉमसन लिखता है मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम कोई एक मौलवी ऐसा नहीं था जो ये कह देता कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, जो ये कह देता कि हम जंग करने वाले नहीं हैं, जो ये कह देता कि हम इस फतवा में शरीक नहीं है। सबने काम जंग करते हैं, सबने काम तुम्हारे खिलाफ है। कहता है मेरी निगाहों के सामने 79 उलमा को भी उसी आग पे लटा दिया गया और सब चल करके कोयला हो गए और राख हो गए, लेकिन किसी ने सूचक नहीं किया और किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ नहीं थे। सबके सब शहीद होते चले जा रहे हैं। हमारे लोग लिखते हैं, हमारे अपने लिखते हैं, हमारे अपने मुअर्रिखीन लिखते हैं 14,000 उलमा को फांसी दी गई है, सबसे धार पे लटकाया गया है। 14,000 उलमा को फांसी का फंदे पे लटकाया गया है। जबकि खुद एडवर्ड टेम्स लिखता है अपनी एक किताब के अंदर कि इस जंग के बाद हमने 51,200 लोगों को फांसियां दी है और उसमें से सिर्फ 27,000 उलमाए किराम हैं। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये आप नहीं लिख रहे हैं, ये यहाँ का मौर्रिख नहीं लिख रहा है, ये खुद अंग्रेज लिख रहा है और उसके साथ एक और मौर्रिख शामिल है। दोनों अपनी किताब में
पूरे हवाले के साथ लिखते हैं और पूरी तहकीक के साथ लिखते हैं कि इस गदर के बाद जिसे वो गदर कहते हैं और जिसे हम बगावत कहते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं, जिसे हम जंग आजादी कहते हैं, जिसे हम अपना हक समझते हैं और जिसे ये हम समझते हैं कि हमने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमने जोर फूंका था आजादी का, जिसे वो गदर कहते हैं। वो लिखते हैं कि इस गदर के अंदर 51,200 लोगों को फांसियां दी गई थी और उनको फांसी देने के बाद वो आगे मौर्रिख लिखता है कि इसमें सिर्फ 27,000 उलमा की तादाद थी। हमारे लोग सिर्फ 14,000 लिखते हैं। हमारा मुखालिफ खुद लिखता है कि नहीं, 27,000 सिर्फ उलमा की तादाद थी। और यही नहीं, पाट्टेकोपाध्याय जो उस वक्त इलाहाबाद के इलाके में थे, उन्होंने लिखा है कि इतने लोगों को फांसियां दी गई और इतने लोगों को मारा गया, इतने मुसलमानों और हिंदुओं को काटा गया कि इलाहाबाद के इलाके में कोई झाड़ नहीं बची थी, कोई दरख्त नहीं बचा था, कोई दरख्त ऐसा नहीं रह गया था जिस दरख्त के आड़ में कहीं छुपा जा सके, कहीं साया हासिल किया जा सके। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उलमा और आवाम को ढूंढ के मारा गया था और वो लकड़ी या तो कब्रिस्तान में लगाने में लगा दी गई थी, चीर करके। वो दरख्त या तो कब्रिस्तान के पत्ते उसे लगा दिए गए और वहाँ की लकड़ियां कब्रिस्तान में लगा दी गई, या तो फिर सीता पर लकड़ी वो जा करके जला दी गई। यानी या तो मुसलमानों की कब्रिस्तान में वो लकड़ी लगी या तो हिंदुओं को जलाने में वो लकड़ी इस्तेमाल हुई, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी तारीख के अंदर लिखते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा इलाहाबाद के पूरे इलाके में एक दरख्त ऐसा नहीं रह गया था जिस दरख्त के आड़ में छुपा जा सके। इतना ज्यादा लोगों को मारा गया, इतना ज्यादा लोगों को शहीद किया गया। और मैं नहीं लिखता, एक हिंदू मौर्रिख है मेवा राम गपत, ये हिंदू मौर्रिख है, उसने लिखा है कि 1857 के बाद 1861 से 64 तक कुरान पे मच्छाती की गई, उसे जलाया गया और 64 से 67 तक फिर जा करके मुसलमानों को जिंदा मारा गया और जिंदा जलाया गया और इनको दफन किया गया। उसने लिखा है कि मेरी तहकीक के मुताबिक 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया है। उसने लिखा है मेवा राम गपत का ये जुमला है, उसकी शहादत है। हम नहीं लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं लिख रहा है, कोई और नहीं लिख रहा है। मेवा राम गपत जी लिख रहे हैं कि 5,000 उलमा को नहीं, 5,000 उलमा को नहीं, 27,000 उलमा को नहीं, बल्कि 5 लाख उलमा और मुस्लिम आवाम को शहीद किया गया इस जंग के अंदर। ये मेवा राम गपत के जुमले हैं। ये सिलसिला चलता रहा 1864 तक। उसके बाद फिर मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा ने देखा कि अब इस तरह से बात बनने वाली नहीं है।